Good morning, ladies and gentlemen. Today, I am very happy to share with you that today is my first day of some webinar. I have conducted a webinar on guidance to IAS scholars. This topic you will feel little bit uneasy that how come I am addressing this topic. But no, what happens? Lot many IAS aspirants, they are working hard, doing honestly, justifying their study and their desire, but they are not able to come true. They are facing lot of problems of the disappointment. You are hearing that in a difficult circumstances, one lady has topped the examination, one disabled lady topped the examination, one lady who was weak from the Maika side and from the Sasural side, and his husband, her husband also has not supported, but having one children, she topped the examination and she become the IAS. This is the story posted on the WhatsApp on 22nd of the August 2020. All right, all are not having equal luck and equal efforts, trick and ideas. एक रिक्शा चलाने वाले इंसान की लड़की ने जो IAS टॉप कर दिया, एक जो है कहीं छोटे से गांव के लड़के ने IAS को टॉप कर दिया, ठीक है, बट population out of the total population of the IAS who entered into the examination is thousands and thousands, and out of that if 2-3% or 5% are coming up blinking like this, what I said is all right, but do we need only this much IAS officers? No, we need more and more IAS officers, and people are aspirants, people are desirous of it, but they are not getting the way out. I thought that being as a doctor and having 30 years of the experience, I have come across lot of IAS officers in during the employment. I have given the opportunity to them, IAS, PCS, IRES, and Colonel, Major, General. These kind of the people I have come across, and I was lucky to offer them the opportunity in the organization. But how a maximum people can be trained in this direction? So you see that if you study the reason of failureness either in the interview or in the written examination, then main cause of the failureness is very important. I will start from interview session, that is the etiquette and manner. You have seen the people are studying but they lack in the etiquette and manner. जब भी उनको इंटरव्यूअर के सामने जाना है तो दरवाजे को डायरेक्टली वो ढकेल करके और चले जा करके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बहुतेक आपने ऐसा देखा होगा, सब तो नहीं। उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप पहले टक 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 3 बार आप इस स्पीड में दरवाजे को खटखटाएं, दरवाजे को थोड़ा सा ढकेलें अंदर की ओर, और आप अपने गर्दन को अंदर डाल करके उनके अटेंशन को ड्रा करें, मे आई कम इन सर। व्हाट? मे आई कम इन सर। देन देयर विल बी 2 repercussion. One is that please come, then you will go to the chair, and second will be that they will say with the different expression that hold, wait, we will call you. In this you are getting disturbed somehow, and when they are calling you after 1 minute or 2 minutes, then you are totally drained out. Your mind, your चेहरा एकदम से उतर जाता है कि क्या यार, मुझे तो इन्होंने दरवाजे पे रोक करके इंसल्ट कर दिया। लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का इंटरव्यू हो, कोई भी एडवर्स या हमारी इच्छा के अनुसार कोई घटनाएं घटती हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा,
तो हमारे किसी न किसी प्रतिभा को वो चेक करते हैं। जैसे इस केस में हमारे पेशेंस को चेक करने के लिए उन्होंने देखा कि इनको ज़रा रोक के देखो, ईगोइस्टिक आदमी दिख रहा है जो है। तो हो सकता है आपके ईगो का परीक्षा इस तरीके से हो रहा हो, एंड यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल, एंड व्हेन यू एंटर इनटू रूम टू फेस देम, देन यू वेयर फेसलेस, you were disappointed, disgusted. It should not happen. Don't do like this. You reach to the chair. What happens? People pull the chair without offering the chair. They sit on the chair. No, don't sit on the chair. Wait, go up to chair. Stand there. You will get offer. Please sit down. Then you sit down. Now, how to sit down? Keep your कमर के ऊपर के पूरे पोर्शन को अप टू स्कल तक आप एकदम से स्ट्रेट रखें। दोनों हाथ के पंजों को अपने थाई के ऊपर एकदम से समतल रखें और घुटनों के नीचे अपने पैर को ज़मीन पे कस करके टिका करके रखें। और ऐसा ना हो कि आप पैर को क्रॉस करके रखते हों या आप एक पैर से दूसरे पैर को खुजली करना शुरू कर देते हों या नाक में डायरेक्ट उंगली डाल करके नाक खुजली करना शुरू कर देते हों। नहीं, आप अपना हैंडकरचीफ निकालिए, उससे आप जो अपने नाक को साफ करिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप खांसते हैं तो ऐसा ज़ोर से खांसते हैं कि आपके अंदर का मलवा मतलब थूक आदि वो दूसरे के सामने तक चला जाता है, 2 फीट 3 फीट 4 फीट दूर तक। नहीं, हम कभी भी खांसें तो अपने हाथ को नाक के नीचे लगा करके इस तरीके से जैसा मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप उसको ढक के रखें और फिर आप जो है अपने रुमाल से अगर खांसी आई है तो उसको साफ करके और रुमाल को अंदर रख के फिर से यथावत पोजीशन में आप बैठ जाएं। आप इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, आप खुजली मारने लगते हैं और आपकी खुजली देख करके सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, बात कुछ जमती नहीं है। दूसरे पॉइंट्स हैं जैसे कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती का डर रहे हैं और उस उत्पीड़न में आप हकला करके बोलना शुरू कर देते हैं। आप सोचते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, मुंह से बोलते कुछ और हैं। इस डिसबैलेंस की वजह से आपके अंदर पर्सनालिटी में डिफेक्ट आ जाता है। इसके बाद अगर आप सोचें तो खास करके हम 3 तरीके के माइंड को जानते हैं, एक वुड माइंड पर्सन, रबर माइंड पर्सन एंड इलास्टिसिटी माइंड पर्सन। जो मध्यम, जो एकदम से बिलो औसत डिग्री के जो माइंड के पर्सन होते हैं वो वुड के तरीके से होते हैं कि जितना उन पे कुल्हाड़े से आप प्रसार करेंगे उतना ही फटेगा, जितना आप पूछेंगे उतना ही वो बताएंगे, आगे पीछे वो कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। ऐसे लोग होते हैं वुड माइंड के लोग, जिनकी सोच और समझ बिल्कुल नीचे की होती है। दूसरे होते हैं रबर माइंड पर्सन। रबर माइंड पर्सन, उनको आप जितना खींचिए उतना खींचते हैं लेकिन फिर छोड़ दीजिए तो फिर वो सिकुड़ के अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग 100 कार्ड होते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी माइंड के पर्सन जो होते हैं उनको एक बार आप खींचते चले जाइए तो खींचते हुए चले जाते हैं, जो है इंडलेस हो जा, खींचते हुए आपके चले जाते हैं, आपके हाथों के समानांतर हो जाते हैं और वो जो है तीव्र दिमाग के लोग कहे जाते हैं। तो हमें अगर IAS की श्रेणी में अपने को लेके जाना है तो हमें इलास्टिसिटी माइंड का पर्सन बनना है कि जितना हम खींचते जाएं हम उतना फैलते जाएं, यहाँ तक कि हाथों के समानांतर हमारी भी स्थिति बन जाए। आ जाइए दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों, IQ, EQ, SQ एंड AQ। IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आपका इंटेलिजेंस, आप कितनी बुद्धिमान हैं, ये सब के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर बनते हैं, छटनी होती है, उसमें से सपोज करिए 10 में से हमें रैंक करना है तो मैं आपको समझाने के लिए अपने जजमेंटल बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो एक IQ पर्सन होता है आउट ऑफ 10 में उसको जो है 6 मार्क अगर मिलता है तो समझा जाता है कि इसका IQ ठीक ठाक बनता है। EQ इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन में देखा जाता है कि आदमी अगर लोअर लेवल का है तो लेस इमोशन होना चाहिए, हायर लेवल का है और सीनियर लेवल का है तो उसका EQ ज़्यादा होना चाहिए। SQ जो डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं वो जो है सोशल क्वेश्चन एंड दूसरा जो SQ है स्पिरिचुअल क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं।
यानी जो इंसान के द्वारा गलतियां हो गई हैं या जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है या जो मिस बिहेवियर हो गया है उसको मद्देनज़र डिसीजन लिया जाए, या इस डिसीजन का जो डिसीजन हम ले उस पर सोसाइटी पे कितना असर पड़ेगा उस पर लिया जाए। तो उस लेवल के लोग जो बहुत ही सीनियर, बहुत हाई डायरेक्टर लेवल, बोर्ड लेवल के लोग होते हैं, वो लोग जो है होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्टनर जो होते हैं, उन लोग जो है ESQ सोशल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रह गया एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसी भी इररिस्पेक्टिव टू एज, एक्सपीरियंस, साइज एंड वाट एवर दैट कोई भी एडवर्सिटी हमारे सामने आ जाती है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है उसको हैंडल करने का। IAS ऑफिसर के पास तो हमेशा AQ का बहुत ही जब देखो तब क्षण प्रतिक्षण उसको एडवर्सिटी क्वेश्चन, चैलेंजेज उसको आते रहते हैं, और उसको सोते वक्त, जागते वक्त, ड्यूटी पर, नॉट ड्यूटी पर, हर वक्त उसके प्रेशर रहता है दिमाग पे और एक न एक एडवर्स सिचुएशन पैदा होता रहता है। तो उसको मजबूर होकर सोचना पड़ता है कि हाउ आई कैन ओवरकम फ्रॉम दिस एडवर्सिटी। मेरे दोस्तों, इस तरीके से AQ का कॉरपोरेट्स में भी इम्पैक्ट होता है और हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्पैक्ट होता है, और जो इंसान स्ट्रेटजिक थिंकर होते हैं उनके ऊपर ये AQ का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा को AQ बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा को SQ एंड SQ सोशल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हैंडल करना पड़ता है। हमारे भाई को सबसे ज़्यादा EQ हैंडल करना पड़ता है, हमारी सिस्टर को EQ हैंडल करना पड़ता है, वहीं पर हमारे छोटे भाई को, छोटी बहन को IQ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो है ये कोई साइंस नहीं कहती है, लेकिन ये किस तरीके के लोग कहाँ फिट होते हैं, हमने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस पे जो खुद किया है और जो लोगों से हमने सीखा और समझा है, आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि IAS की तैयारी करने वाले जो भी स्कॉलर्स हैं वो लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होनी चाहिए, हमारी ओवरऑल स्टाइल क्या होनी चाहिए, हमारा पहनावा क्या होना चाहिए। हम IAS के एग्ज़ाम वालों को हमेशा सुना है कि सफ़ेद शर्ट, काला पैंट, ब्लू स्काई शर्ट और डार्क ब्लू पैंट लोग पहनते हैं और काला नुकीला जूता पहनते हैं। यहाँ तक का गाइडेंस हमें प्राप्त हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि IAS का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जो कि कंट्री लेवल पे होता है। उस पर इन तरीक़ों की भी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, यहाँ तक कि आपका वाइट कलर का हैंडकरचीफ होना चाहिए। ये नहीं कि रेड कलर का, येलो कलर का, बैंगनी कलर का आप हैंडकरचीफ लेके चले गए हैं। ये नहीं कि जूता आपका नुकीला ना हो करके पता चला कि आगे पीछे की ओर तो जो है संतुलित है और आगे की ओर स्पोर्ट्समैन के जैसा हो जाए, या आप स्पोर्ट्समैन का ही जूता पहन के चले गए इंटरव्यू देने। नो, all these things please don't neglect. All these things are very important. From the depth of my experience I am trying to share with you. The person who are going to appear into IAS exam, IPS exam, MBA exam, IIM exam, they themselves if hearing or this video is reaching, so take care of at least those points which I am discussing with you, and your fathers and parents if listening, they should explain to the children and they should follow it up. Thank you very much. Do take care of yourself.